Welcome all of you, class. I am Durgesh Kumar Pandey, and I am going to explain a topic. You can say a book, a political theory. This is your second book in the class 11, political theory. Class, I want to give you some information about what is a political theory and what is politics and why we study the politics or political science. Class, first of all, I want to explain about what is political theory. Actually, class, this political theory, this paper is giving, inform you about the values which are available in our constitution, like freedom, equality, justice, fraternity, secularism. Okay, so class, in this paper, we are try to understand what are the principles which are available in our Indian constitution and what is their correct meaning and what is the relevant of these ideals in our constitution, like equality, freedom, what have a value, इसकी क्या कीमत है, we are searching, they are relevant और उसका use क्या है, and we are trying to analyze these ideals कि भाई like in our constitution like a concept was a separation of power. The power of the government is separated among legislative, executive and legislature, executive and judiciary, and to this separation of power is the ideal which are available in our Indian constitution. And in the political theory, like example, we are trying to what are the relevant of this separation of power. Plus, I want to give you an example. What the thing I study in the we are studying the political science, like the power of the government is divided among three organs. This is the separation of power. First, the part of the government is executive. Second is legislature. And third is judiciary. Class, like this is the separation of power, and this is the principle, this is the ideal in our Indian constitution, and we have adopted this idea from Montesquieu. During the French Revolution, the people who are living in the France, they were adopted, and this idea was also influenced by USA, and United States of America was adopted their basic principle, separation of power. The power of the government is divided among executive, legislature and judiciary. And this idea was the base of the constitution of USA. That is why our India was also adopted this model of separation of power. So what are the relevant, जैसे this is an example कि what the thing we are studying the political science, हम political science में पढ़ते क्या है, तो we are studying कि what is the separation and power, क्यों, उसकी need क्या है, like you are already studying the class 9 Louis 16 was a cruel rule, उसके हाथ में सारी पावर कंसंट्रेट थी तो उसका मिस यूज करता था. That is why Montesquieu present the idea
कि पावर ऑफ द रूलर इज डिवाइडेड अमॉन्ग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में बांट दो। तो इससे क्या होगी कि पावर गवर्नमेंट के पास कंसंट्रेट नहीं होगा, तो वो पीपल्स का एक्सप्लॉटेशन नहीं कर पाएंगे। तो दिस बेसिक आइडिया was given by the Montesquieu in all over the world and इससे क्या होगा कि जब पावर बढ़ जाएंगे 3 ऑर्गन में, तो जो पीपल्स हैं, जो आपके पीपल्स हैं, कॉमन पीपल्स हैं, उनकी फ्रीडम प्रोटेक्ट रहेगी, वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। बिकॉज द पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन अ हैंड, पावर इज सेपरेटिंग डिवाइडेड अमॉन्ग 3 ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। पावर एक जगह कंसंट्रेट नहीं है, तो फिर वो जनता पे जो है एक्सप्लॉटेशन नहीं कर पाएगा रूलर। एंड दिस सेपरेशन ऑफ पावर इज द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। जो नागरिकों के सिटीजन्स की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करता है ये सेपरेशन ऑफ पावर। दैट इज वाई दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मॉन्टेस्क्यू वाज आल्सो सेइंग कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको हर ऑर्गन नेक्स्ट ऑर्गन को कंट्रोल करता है बाय चेक एंड बैलेंस। ओके, लाइक एग्जीक्यूटिव इज कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ओके, एग्जीक्यूटिव जनरली लेजिस्लेचर के मेंबर भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से अलग भी होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। जुडिशरी जो है, जो भी पार्लियामेंट का लॉ बनाती है उसकी वैलिडिटी को चेक करता है जुडिशरी। तो दियर फंक्शन, उनके काम अलग अलग है, लेकिन इसके साथ साथ दे चेक एंड बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। लाइक अ क्लास, आप ये मॉन्टेस्क्यू वाज सेइंग कि गवर्नमेंट के पावर को 3 ऑर्गन में बांट दो और 3 ऑर्गन जो है इंडिपेंडेंटली जो है आज़ाद रहेंगे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर होगा, कोई किसी हर अपना काम करेगा, लेकिन इसके अलावा चेक एंड बैलेंस रहेगा। एक ऑर्गन ही दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल करेगा, चेक एंड बैलेंस करेगा। तो लाइक सपोज यू हैव अ ऑटो, आपके पास एक ऑटो है, तो दे हैव अ 3 व्हील्स, 3 चक्के हैं, एक सबसे आगे है और पीछे 2 चक्के हैं। तो लाइक 3 पिलर, 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और ऑटो तब तक नहीं चलेगा जब तक ये तीनों पहिए एक साथ कोऑर्डिनेशन बिना करके एक डायरेक्शन में चले, तभी ये ऑटो चल पाएगा। तो सिमिलरली इन जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑटो का जो वन व्हीकल से आगे जा रहा है दूसरा पीछे जा रहा है, तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द 3 ऑर्गन इज कंपल्सरी, जरूरी है, तभी जो है गवर्नमेंट प्रॉपर वे में काम करेगी। गवर्नमेंट मीन्स दीज ऑल द 3 ऑर्गन आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर था, दिस आइडिया वाज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। और देखो वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, लाइक ब्रिटेन, USA, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, चाइना, इंडिया, सारे कंट्रीज़ ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया। तो दिस इज़ अ प्रिंसिपल, दिस इज़ अ आइडियल एंड दिस वाज अ वेरी पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया की सारी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, उसमें आपको ये फीचर मिलेगा। तो इन द पॉलिटिकल थ्योरी वी स्टडी अबाउट दिस, कि ये जो ढांचा है, ये मॉडल है, प्रिंसिपल है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल की नीड क्या है, आवश्यकताएँ क्या हैं, ठीक है, इसका रेलेवेंस क्या है, और वाई दिस मॉडल वाज अडॉप्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम कंट्रीज़ ने क्यों अडॉप्ट किया। तो वी आर स्टडी, हम इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। क्लास, you know, human beings are very different from other creature like animals. Human beings और animals में difference है। Human beings के पास जो है सोचने समझने की रीजनिंग पावर है, ability to
थिंक रैशनली, किसी चीज़ को समझता है, एंड ऑल्सो ह्यूमन बीइंग हैव अ कैपेसिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग्स में। वो उसकी सोचने समझने की जो एबिलिटी है जो उसको डिफरेंट एनिमल से अलग बनाती है। क्लास, क्योंकि क्लास ह्यूमन बीइंग्स क्या गुड है क्या बैड है इसको सोचने समझने की कैपेसिटी ह्यूमन बीइंग्स में, क्या जस्टिस है। क्लास इन द पॉलिटिकल थ्योरी वी विल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज़ द नीड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की नीड क्या है, वाई वी हैव अ नीड इन गवर्नमेंट, और हमें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, किस टाइप की गवर्नमेंट अच्छी होती है, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या मोनार्की। वी विल स्टडी दिस पॉलिटिकल थ्योरी हम, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स लाइक हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, तो इन चीज़ों को हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। प्लस फ्रीडम, justice and equality, these are the things which are available in our constitution। तो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिस, इसका मायने क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। Class, we will also try to understand what is the meaning of equality in the past, and what is the meaning of equality as present, and what is the meaning of democracy in the past, and what is the broader and present meaning of democracy. We will try to understand in this political theory कि जो पॉलिटिकल थ्योरी में तमाम जो आइडियल्स हम लोग यूज़ करते हैं तो वो कैसे आया, ठीक है, व्हाट वाज द हिस्ट्री, उसका इतिहास क्या है, ठीक है, एंड व्हाट आर द रेलेवेंस, उन आइडियल्स के रेलेवेंस क्या है, हम लोग जानने की समझने की कोशिश करते हैं। लाइक सेकुलरिज्म, व्हाई सेकुलरिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ नेशन, सेकुलरिज्म को क्यों अपनाना चाहिए स्टेट को, और किस तरह से बेनिफिशियल होता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द पॉलिटिकल थ्योरी। क्लास, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी टू ट्रेन द सिटीजन कि पीपल्स विल बिकम टू एबल टू थिंक द पॉलिटिकल क्वेश्चन रैशनली, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनको सही तरीके से वो समझ और सोच पाएँ, और उनके अंदर पीपल्स के अंदर रैशनल थिंकिंग डेवलप हो जाए। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कि वो लोगों को इस लायक बना सके कि किसी चीज़ को अच्छे से जो है इनोवेट रेशनल तरीके से, जो तर्क वितर्क तरीके से उसको अच्छे से जान और समझ पाए। क्लास, और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है क्या। स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग इन द करेंट टाइम्स, पीपल्स वेर गिव देयर ओन मीनिंग। आजकल हर कोई जो है टॉकिंग अबाउट कि पॉलिटिक्स वो जानता है एंड दिस इज़ अ नेगेटिव एक्टिविटी। सब कोई कहता है कि पॉलिटिक्स जो है वो उसको समझ में आता है, एंड जनरली टेक इट इज़ अ नेगेटिव एक्टिविटी, एंड हर आदमी जो है पॉलिटिक्स करता है टू मैनिपुलेट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह लोगों को जरिया बनाता है, एंड पर्सन जो है पॉलिटिक्स करता है। एंड जनरली जो हमारी सोसाइटी में जो इसका मीनिंग है, जनरली दे टेक द मीनिंग एज ए नेगेटिव वे में उसका मीनिंग लिया जाता है। क्लास, पॉलिटिक्स को जनरली लोग ये समझते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियन करते हैं, द पॉलिटिशियन जो हमारे करते हैं कि दे कन्विंस द पीपल फॉर वोट, एंड जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उन लोगों को समझा बुझा करके जो है वोट लेते हैं और फिर उनको
इस्तेमाल करते हैं, एंड हमारे पॉलिटिशियन करप्शन का यूज़ करते हैं और जो पावर का मिसयूज़ करके अपने लाइफ को जो है अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं और पीपल्स को जो है मिसगाइडेड भी कई बार करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो पॉलिटिशियन समवन सेइंग कि पॉलिटिक्स हुआ है जो पॉलिटिशियन करते हैं। देखो क्लास, दिस इज़ द नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स का सही मायने नहीं है। देखो पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी है, पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी सोसाइटी के वेलफेयर को इंश्योर करती है, पीपल्स के लाइफ को बेटर बनाती है, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स एक ऐसा एक्टिविटी है जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पीपल्स करते हैं, जो है यूज़ करते हैं। क्लास जनरली पॉलिटिक्स को कुछ लोग जो है सेल्फ इंटरेस्ट, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन भी जनरली समझते हैं, और ऐसा है भी कि लोग पॉलिटिक्स करते हैं ताकि उनकी जो पर्सनल नीड है वो पूरी हो सके। तो पॉलिटिक्स को नेगेटिव एक्टिविटी के रूप में भी लिया जाता है, बट इट इज़ नॉट नेगेटिव। पॉलिटिक्स एक जो है वे एक्टिविटी है जो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, हमारी सोसाइटी को एक ढांचा देती है, जीने का तरीका देती है। ओके क्लास, तो क्लास कलेक्टिवली मीन्स पॉलिटिकल जो है पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव और कलेक्टिवली यू कैन से पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो लोगों के लिए कि अलग अलग नीड्स, अलग अलग लोगों के सोचने के तरीके से डिफाइन होती है, बट देयर मेन एम टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी and individual also. Class, our next topic is why do we study in the political theory. What do we study? What do we study in political theory? What do we study? Class, our next question is what do we study in political theory? Class, generally in the political theory we study about the values which are available in our Indian constitution, like democracy, freedom, equality, justice. These are the values which are available in our Indian constitution, and we will try to study in this political theory कि what is the meaning of equality, what is the meaning of freedom, and what is the difference between freedom and reality, freedom and liberty, what is the difference between freedom and liberty, what is equality, and what is the meaning of equality in a democracy. So we will study about this, okay. And हम पॉलिटिकल थ्योरी में यही पढ़ते हैं कि भाई देखो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में हैं वो कि रातों रात नहीं तैयार हुए। इट विल मेक ड्यूरिंग अ सेंचुरी, सैकड़ों साल, हज़ारों साल लगे इनको डेवलप में, लाइक आइडिया ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस क्या है, तो ये आइडियाज़ कैसे आया। आप सबसे स्टार्टिंग में वी आर गोइंग टू इन द पीरियड ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने जस्टिस को डिफाइन किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि भाई जो न्याय क्या है, जो है पीपल्स जो है अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करें और कोई किसी के वर्क में इंटरफेयर ना करें, दिस इज़ अ जस्टिस। उन्होंने कहा कि रस्तु वाज सेइंग कि प्लेटो ने कहा, प्लेटो ने बोला कि देखो ह्यूमन बीइंग्स है तो उसमें 3 टाइप्स के जो है क्वालिटीज़ होती हैं।
कुछ ह्यूमन बींग्स जैसे उसमें वाइज विजडम होता है, कुछ में जो है सेकंड थिंग करेज होता है, और किसी में जो है उसके ढेर सारे डिज़ायर्स। ये तीन चीज़ें होती हैं, थ्री जो है फीचर्स जो है अवेलेबल होते हैं ह्यूमन बींग्स में। एंड जिस ह्यूमन बींग्स में जिस चीज़ की मेजॉरिटी है उसको वही काम करना चाहिए। इट मीन्स इफ़ दे हैव अ मेजॉरिटी ऑफ विजडम तो उसे रूलर बनना चाहिए। इफ़ दे हैव अ मेजॉरिटी ऑफ करेज दे तो बिकम सोल्जर बनना चाहिए। अगर वो डिज़ायर्स उसकी बहुत ज़्यादा है तो ही वुड बी अ फार्मर, या इस तरह से उसे काम करना चाहिए। तो प्लेटो वाज सेइंग कि अपने जो भी आपके अंदर जो भी आपकी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो और दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर ना करो। दिस इज जस्टिस। ओके, तो फ्रॉम टुडे 2000 ईयर पहले ही जो प्लेटो ने जो है इसको डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिस। ओके, and he explained the idea of justice. He correlate this justice with the morality. Rousseau was the first person who was using the word of rights कि fundamental rights होना चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलरली जो कार्ल मार्क्स ने जस्टिस की बात कही। तो ये जो आइडियल्स हैं ये हज़ारों सालों में, सैकड़ों सालों में डेवलप हुई। कार्ल मार्क्स की जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट था वो पॉपुलर हुआ, ठीक है, और फिर ये वर्ल्ड वाइड एक कंसेप्ट बना। यूएसएसआर, कम्युनिस्ट चाइना उस कंसेप्ट को फॉलो किए। एंड सिमिलरली जो नेचुरल राइट्स की बात थी, ठीक है, एंड जॉन लॉक ने जो है डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फ्रीडम की जो बात कही। रूसो वाज सेइंग कि फ्रीडम जो है लोगों का फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जस्टिस होना चाहिए। एंड सिमिलरली एरिस्टोटल एंड प्लेटो वाज सेइंग अबाउट द व्हाट इज जस्टिस। क्लास कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बहुत सारे आइडियाल्स हैं, लाइक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, liberty of thoughts expression, belief, faith and worship, and fraternity, secularism, democracy। ये हमारे प्रियम्बल में जो आइडियल्स हैं ये हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। एंड वी आर आल्सो स्टडी कि ये आइडिया आए कहाँ से, इसकी ओरिजिन क्या थी और ये हमारे बीच में किस तरह से अपना एक रेलेवेंस कायम किया। ये सब वी विल स्टडी अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। ओके क्लास, we are going also, we are going to explain, we are going to understand about why we study the political theory। हम political theory क्यों पढ़ते हैं? देखो बेटा, जैसे you can study about the mathematics, आप क्लास 10 की मैथ पढ़ते हो, you have knowledge, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैथ का, then you live a good life। इसी तरह से पॉलिटिकल थ्योरी भी अगर आप जाने रहोगे तो यू कैन जज द गवर्नमेंट एंड इसकी क्या रिलेवेंस है, जो प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको आप अच्छे से जान पाओगे, समझ पाओगे, एंड यू कैन थिंक रेशनली। वंस अगेन क्लास आई वांट रिवाइज द थिंग्स अगेन। देखो बेटा, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस and what is political theory? Political science is a subject, and politics is a activity, no? And in the political science we try to understand what are the ideals, what are the principles in our Indian constitution, and in this chapter we are also trying to understand the meaning of दिस आइडियल, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस। और पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग इन वैल्यूज़ जो हमारे सेकुलरिज्म, तो उसको हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं इन पॉलिटिकल थ्योरीज में।
Okay class, thank you. We will next in our next class. Thank you class.